Now hope voice is audible. Now we'll move ahead with that is our part is reflexive. As per the discussion is what is reflexive. As I told earlier, that is reflexive is whenever a term is related to itself or whenever the element is related to itself only. So one by one we have to start. One more term is we have to define as a symmetric. Hope the term symmetric we remember. Symmetric. Symmetric means again it is when A related to B and B related to A. If A comma B belongs to R and B comma A also belongs to R, also belongs to R. This implies that is where all A comma B belongs to A or whatever the respective sets you have to define. So basically the main more important thing is where this part is we can say that is this is our reflexive part, oh sorry, symmetric part. Whenever a term A related to B is present, then we can write that is a B related to A. Asymmetric means hope the term is opposite. If these things are not possible, then we can say that this is asymmetric. Next one is a transitive. The third part is a or the types of relation is third relation is transitive relation. As last time we told that is a transitive. I just explain only transitive. So the transitive means if A related to B, B related to C, then A related to C or C related to A. If such relations are present in any types of relations, then we can say that that relation is a transitive relations. Now see how to represent a relation. So this is a one format or one way to represent a relations, that is A related to A related to B related to A related to B related to C, and A related to C. But there is one more type is representation of relation is known as a matrix form. Matrix form. Now always remember that is a matrix form representation is what? Suppose a set A is given. Suppose a set A is given A, B, C, and D, and their relation is defined. R is equal to the relations are defined like A comma A comma B, A comma D, B comma D, C comma D, D comma D, and we can write. I'm just writing that is uh, A comma C. One more relation, just defining it. So these are the relations given. Suppose just considering this part, and we have to define in a matrix form or represent in a matrix form. So we have to define matrix relation in matrix form, which is equal to which is equal to relation in a matrix form, which is equal to the elements are A, B, C, and D. There are four elements. Again, I am writing just for understanding A, B, C, and D. It's up to you. आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखोगे ऊपर तो भी चलता है. Now A comma A is given. A comma A is given in a relation, so you have to write A comma A as one. A comma A as one. A comma B is given, so you have to write one. Similarly, A comma C we have here, so we can write
1 a comma d, a comma d is there, so you have to write 1. Similarly, b comma a is there, no. A comma b and b comma a both are the different things. Please try to understand. So b comma b is not given, sorry, b comma a is not given, so you have to write 0 here. B comma b is there, no, so we have to write 0. B comma c, so b comma c is not present in a relation, so we have to write 0. B comma d, yes, there is a presence of b comma d, so you have to write 1. Similarly, c comma a, no, so you have to write 0. C comma b, 0. C comma c, 0, not present in a relation. C comma d, yes, so we have to write 1. Similarly, d comma a, not present, so we have to write as it is 0. D comma b, 0. D comma c, not present. D comma d, yes, there is a 1, so we have to write 1. So this is a just representation of a matrix relation in a matrix form, the representation of a relation in a matrix form. So hope things are clear in your mind, that is how to represent a relation in a matrix form. Whatever the relations are given, you have to define first relations, and after the relations defining, you have to write in a matrix form. So always remember, relation in a matrix forms is how to represent. So relation is represented by matrix form, and the relation is one more terms we have to define a relation by digraph. So that that's why the chapter name is a relation and digraphs. So that relation you learn here, you have to write in a diagram form or diagrammatically, but that diagram is represented by a graphically, or we can say that a digraph. So always remember. Now just going to taking one example so that your doubt must be clear. Now the example will be, I'm going to taking here. Sorry, I don't know that one. Example will be the first example. Let a is equal to 1 2 3 4, 1 2 3 4. Determine determine whether the relation whether the relation is reflexive, symmetric, and transitive. Transitive. Determine whether the relation is reflexive, symmetric, and or sorry, not and we have to use. We have to use or transitive. So we have to just determine that is the relations are reflexive, symmetric, or transitive, and the relations are given. The first relation is given a r is equal to 1 comma 1, 1 comma 2, 2 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3, 3 comma 4,
4 comma 3, 4 comma 4. So this is first relation, and one more relation is given, that is a BR is equal to 1 comma 2, 1 comma 3, 1 comma 4, 2 comma 3, 2 comma 4, and 3 comma 4. So one by one we have to solve here. For first part we have to solve. So A, that is R is given 1 comma 1, 1 comma 2, 2 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3, 3 comma 4, 4 comma 3, and 4 comma 4. So the relation is given, and set is also given, that is A is equal to 1, 2, 3, 4. So just return whatever the terms is given. So first we have to check for the reflexive. So for the reflexive we have to see. So if you see, that is in a relation, 1 comma 1 is present, 2 comma 2 is present, 3 comma 3 is present, and 4 comma 4 is also present. Just if I check 1 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3, and 4 comma 4 all are present. So I'm just writing here diagonal relation of A, diagonal relation of A, we have to just write, or I'm just representing, that is, which is equal to 1 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3, and 4 comma 4. So all are present. This implies that delta is subset of that relation. Therefore we can say that R is reflexive. R is reflexive क्योंकि सभी terms present हैं आपके reflexive में जो होने चाहिए. Now the next one we have to define is a symmetric. So the next part we have to define is symmetric. Symmetric. Now if I see, that is a symmetric. Now what is a symmetric? You must understand what is a symmetric. The symmetric term, always remember one thing, that is we have to verify, that is A, or we can just representing here, A related to B and B related to A by default must be present. So if I see this part, in a relation 1 comma 1 is there, 1 comma 2 is there, 2 comma 1 is there, 2 comma 2, 3 comma 3, 3 comma 4, then 4 comma 3 is there, 4 comma 4 is present. So if I relate that part, then I will get that values will are symmetric, or the relations, symmetric relations are present. So we can just define this part very easily. अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली हमको रिलेशन वेरीफाई हो जा रहा है सिमेट्रिक का, दैट इज, or we can just see, that is 1 comma 2, the 2 comma 1 is by default present in a relation. Similarly if I see, that is 3 comma 4,
and 4 comma 3 is also present in a relation. And if I see that is 1 comma 1, 1 comma 1 भी अगर आप अच्छी तरह से देखो तो 1 comma 1, 2 comma 2, 1 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3, 4 comma 4. So all the elements like a reflexive part elements and my symmetric part elements are present in my relation. So I just have to mention here that is, or I just representing this part, that is a relation R is equal to, if I write this whole relation as it is 1 comma 1, 1 comma 2, 2 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3, 3 comma 4, 4 comma 3, 4 comma 3, and 4 comma 4, 4 comma 4. So these are the relations are present. So according to this relation, we can say that R is symmetric because there is a presence of a relations 2 1 comma 2, 2 comma 1, 3 comma 4, and 4 comma 3 are present in my relations. Even 1 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3, and 4 comma 4 are also present. Now next part we have to define as a transitive. So in a transitive we have to just see whether the part is present or not. So the third part is transitive. So in a transitive, always remember A related to B, A related to B, and B related to C. So this implies clearly that is A related to C. ये होना जरूरी है. Then we can say that is the relation is transitive. Now there is a relation is present 1 comma 1, 1 comma 2, 2 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3, 3 comma 4, 4 comma 3. Now can such a relations are present here? So we have to, I'm just going to define a matrix form here. So very easily we can conclude this part. So set is 1 2 3 4. So just representing here 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4. So 1 2 3 4 according to this part is 1, 1 comma 2 is 1, 1 comma 3 is not present, so 0, 1 comma 4 is also 0. Similarly 2 comma 1 is present, so 2 comma 1, 2 comma 2, 2 comma 3 is not present, so we have to write 0, 0. 3 comma 1 no, so 0, 3 comma 2 not present, 0. So see the 1 again, 3 comma 3, 3 comma 4 is 1, 4 comma 1 0, 4 comma 2 0, 4 comma 3 1, and again 4 comma 4 is also 1. So just see this part, it is a transitive or not. So I'm just giving one thing. Always remember, for a transitive relation, कभी भी आपको ट्रांजिटिव रिलेशंस अगर डायरेक्टली यहाँ पे नहीं मिल रहा है कि जैसे 1,2 प्रेजेंट होता, 2 का मतलब 1,2, 2,3 और फिर 1,3 अगर प्रेजेंट नहीं मिल रहा है ऐसा रिलेशन, तो इसको एक और तरीका है चेक करने के लिए. इफ एम आर स्क्वायर if mr square if mr square is equal to mr into mr,
मतलब इसका स्क्वायर आप निकालो और अगर आपको सेम मैट्रिक्स मिलता है, मतलब एम आर अगर आपको मिलता है फिर से ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो हम उस मैट्रिक्स को ट्रांजिटिव रिलेशन वाला मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, दैट इज इफ a relation matrix square is, again we are getting the same matrix, then such a matrix are or such a relations are known as a transitive relation, because here in this relation 1 comma 1 1 comma 2 2 comma 1 2 comma 2 3 comma 3 3 comma 4 4 comma 3 4 comma 4 ऐसे रिलेशंस प्रेजेंट नहीं है डायरेक्टली कि ए रिलेट बी कर रहा है। जैसे लाइक मैं बोल दूं 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 3 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट मिल रहा है यहाँ पे। और 3 को फिर उसके बाद 1 कॉमा 4 आपको प्रेजेंट हो जाए या 1 कॉमा 3 प्रेजेंट हो जाए, ऐसे रिलेशंस यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो ऐसे रिलेशंस को क्लियरली स्टेटमेंट मतलब दिया गया है कि ऐसे रिलेशंस हैं और अगर आपको ट्रांजिटिव पेयर्स नहीं मिल रहे हैं तो for such a relations you have to use that is the matrix rule or relations of a matrix, or you have to multiply that is relation of matrix, or you have to square that relation of matrix. And if you are getting the same matrix, so by default there is a 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1, ये मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर हम निकालेंगे और हमको फिर से एम आर मैट्रिक्स मिलता है, मतलब जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स, तो इसका मतलब है कि इसमें ट्रांजिटिव पेयर्स प्रेजेंट है और ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये कंडीशन है ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव का मेन कंडीशन ये है। लेकिन अगर ट्रांजिटिव पेयर नहीं मिलता है आपको तो आप एक और एक्स्ट्रा वर्क अप्लाई करोगे कि आप उसका स्क्वायर फाइंड आउट करोगे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके। और अगर आपको ट्रांजिटिव मैट्रिक्स या फिर जो आपका रिलेशन मैट्रिक्स है वो एज इट इज मिलता है, देन वी कैन से दैट रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये कैल्सी में आप एकदम इजीली कर सकते हो, मैनुअली वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी, तो मैनुअली करते बैठो एकदम इजीली, या मैनुअली करना है तो करो मैनुअली, बट कोई ऐसा एक्स्ट्रा मार्क्स इसको डिफाइन नहीं है कि हमको इसको मैनुअली, क्योंकि मैनुअली काफ़ी लेंदी हो जाता है ये पार्ट। कैल्सी में डायरेक्टली हो जाता है ये मैट्रिक्स सॉल्व, क्योंकि आजकल कैल्सी जो है उसमें एडवांस कैल्सी आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हो जिसमें 4x4 भी मैट्रिक्स मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से दैट इज दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन और R is transitive. R is transitive. Now, reflexive relate to itself, symmetric, equal, like A related to B, then B related to A. Transitive, A related to B, B related to C, then A related to C. बट ये क्वेश्चन में हमको वो कंडीशन डायरेक्टली नहीं फुलफिल हुआ है, इसलिए हमने मैट्रिक्स की कंडीशंस के बेसिस पे आए हैं। बट हर एक में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मैट्रिक्स पे कॉन्सेप्ट में ही आपको आना पड़े। आगे ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे के जो हमको डायरेक्टली वहाँ पे रिलेशन में डिफाइन मिले। जैसे सेकंड क्वेश्चन पे अगर मैं जाऊँगा, सेकंड क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से वर्बली हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें, ये सेकंड क्वेश्चन है बी। सो इफ यू सी दैट इज द सेट इज अगेन सेम 1 2 3 4, relation is different 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 are given. सो इफ आई से रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो दैट रिफ्लेक्सिव इज नॉट प्रेजेंट। रिफ्लेक्सिव नहीं है मतलब वो इररिफ्लेक्सिव है, तो ऐसा भी लिख सकते हो। और आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव और आर इज इररिफ्लेक्सिव, ऐसा भी कभी कभी लिखा रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव टू सी दैट इज अ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक अगर यहाँ पे देखोगे तो कोई भी पार्ट को पकड़ो, जैसे 1 2 का 2 1 है, नहीं है। सिमिलरली 1 3 तो 3 1 है, नहीं है। 1 4 4 1 है, नहीं है। 2 3 एंड 3 2 इज नॉट इधर। 2 4 एंड 4 2 नहीं प्रेजेंट है। 3 4 तो 4 3 नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर अच्छी देखोगे आप थोड़ा ध्यान से,
तो आपको सिमेट्रिक पेयर्स नहीं प्रेजेंट मिल रहे हैं इस रिलेशन में। जैसे प्रीवियसली हम भूल गए थे 3,4 एंड 4,3, 1,2, 2,1, वैसे पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है आपके रिलेशन में। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा है। नाउ ट्रांजिटिव है या नहीं। सो ट्रांजिटिव के बेसिस पे जैसे ही हम आएंगे तो ट्रांजिटिव पेयर्स अगर आप देखने जाओ जैसे लाइक 1,2, 2,3 इज देयर, 1,2, 2,3 इज देयर। तो नेक्स्ट लेकिन हमको क्या चाहिए, 1,3 चाहिए, तो 1,3 भी प्रेजेंट है। अगर देखोगे इफ आई से दैट, अगर अच्छी तरह से ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमको ट्रांजिटिव पेयर्स मिल रहे हैं 1,2 मतलब 1 रिलेटेड टू 2 है। सिमिलरली नेक्स्ट आना चाहिए आपका 2 रिलेटेड टू 3, तो आई एम जस्ट टेकिंग 2 रिलेटेड टू 3। तो ये अगर दो चीज प्रेजेंट है लाइक ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू सी, मतलब 1 रिलेटेड टू 3। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि 1 रिलेटेड टू 3 होना चाहिए, तो वो पेयर यहाँ पे प्रेजेंट आ रहा है अगर आप अच्छी तरह से देखोगे। जैसे एक और देखो 2,3, अगर मैं बोलूँ 2 रिलेटेड टू 3 इज देयर, यस 2 रिलेटेड टू 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 रिलेटेड टू 4 भी प्रेजेंट है, तो 2 रिलेटेड टू 4 आना चाहिए, वो भी चीज़ आपका यहाँ पे प्रेजेंट मिल रहा है। तो ये इम्प्लाई करके दे रहा है 2 रिलेटेड टू 4 भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव पेयर्स हमको मिल रहे हैं। और अगर क्लियर आपको करना है ट्रांजिटिव पेयर, तो मैंने जैसे आपको कहा कि मैट्रिक्स बनाना है हमको, और वो मैट्रिक्स को स्क्वायर निकालोगे अगर, तो मैट्रिक्स का स्क्वायर आपको सेम आना चाहिए ओरिजिनल मैट्रिक्स के जैसा, then we can say that that matrix is or that relation is a transitive relation। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हमको एलिमेंट्स मिल जा रहे हैं, a related to b like 1 related to 2, then 2 related to 3, so this implies 1 related to 3। So the transitive pair is present, so you just practice by yourself only at your home, बट सिमेट्रिक नहीं है, नहीं ये टर्म्स आपके रिफ्लेक्सिव हैं। तो ये दो टर्म्स आपके कंप्लीटली चले जाते हैं, मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं ये चीज़ें, जिससे हम इनको कह सकते हैं कि दिस आर नॉट अ ट्रांजिटिव पेयर। सो होप थिंग्स आर क्लियर इन योर माइंड हाउ टू define a relation and what are reflexive, what are symmetric and what are a transitive। तो इजी क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल ऐसा डिफिकल्ट नहीं होते हैं क्वेश्चंस। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जाऊँ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक के बेसिस पे, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, तो एज वी कैन से दैट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में थोड़े से कंफ्यूजन्स कभी कभार जनरेट होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर रिलेशन आपको नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल सिर्फ सेट आपको दिया है लाइक सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, जैसे यहाँ पे अगर हमको सेट खाली दिया रहता 1, 2, 3, 4 और रिलेशन नहीं दिया है, कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, तो ऑलवेज रिमेंबर अगर नहीं दिया है और कोई कंडीशंस नहीं दी गई हैं आपको, इसका मतलब आपको एक वर्कआउट करना है, दैट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा याद रखो, किस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, जैसे मैंने सिखाया है ए इंटू ए, या सेट थ्योरी में हम लोग कैसा मल्टीप्लाई करते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, मतलब वन आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों एक ही सेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है ये दोनों को, तो 1 से हो जाएगा पहले, फिर 2 से पूरे टर्म्स को होगा, फिर 3 से पूरे टर्म्स को होगा, फिर 4 से पूरे टर्म्स को होगा। सो इनकेस कुछ क्वेश्चंस में रिलेशंस ऐसे नहीं डिफाइन होते हैं, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो कि किस तरह आपको सॉल्व करना है या करना है। So this is just examples we taken here. Even a transitive, if I see transitive
ट्रांजिटिव का अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखोगे तो डायरेक्टली आपको डिफाइन हो रहा है, बट फर्स्ट क्वेश्चंस में नहीं हमको एलिमेंट्स मिल रहे थे। अगर कभी भी ट्रांजिटिव पे शक है, ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, तो सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर लो मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो आपका मार्क्स लॉस नहीं होगा, इजीली यू कैन गेट अ फुल मार्क्स। क्योंकि बहुत बार ट्रांजिटिव पेयर्स डिफाइन नहीं होते हैं, लेकिन वो ट्रांजिटिव होते हैं जस्ट after the representation of in a matrix form. So hope things are clear. Now the next topic, next things which already I explained in a last lecture in a definition format, the term is known as a equivalence relations. So हम equivalence relations पे आ रहे हैं यहाँ पे कि equivalence relations पे मतलब न्यूमेरिकल से एक दो हम लोग देखते हैं, क्योंकि equivalence relations पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक फिर से कवर होने वाला है। इसके लिए मैं सेपरेटली यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं ले रहा हूँ, इक्विवेलेंस रिलेशन अभी सॉल्व करूँगा तो वहाँ पे हमको फर्दर डिफाइन करना ही है इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशंस अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। if it is a reflexive, if it is a symmetric and if it is a transitive। अगर ऊपर के जो तीनों रिलेशंस आपने पढ़े हैं, समझे हैं, तो वो रिलेशंस को हम इक्विवेलेंस रिलेशंस कहते हैं। ये चीज़ आप अच्छी तरह से माइंड में याद रखो। What is equivalence relations? Then if a relation is a reflexive, if a relation is a symmetric, and if a relation is a transitive, then such relations are known as, or such relations are called as equivalence relations. Like we can say that is x related to x, this means reflexive, x related to y related to x, ये मतलब हो जाता है आपका सिमेट्रिक, एंड x रिलेटेड टू y रिलेटेड टू z। सो अगर ये इम्प्लाई आप करते हो x रिलेटेड टू z, मतलब ये ट्रांजिटिव होता है। तो इक्विवेलेंस जैसे ही आपको सीखना है, इक्विवेलेंस समझना है, तो ऊपर के तीनों रिलेशंस आपको आना ज़रूरी है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। नाउ विल मूव अहेड फॉर द क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स में हम आएंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल, let r let r be a relation on set on a set A, then the relation R is, sorry, ये क्वेश्चंस में थोड़े से टर्म्स रॉन्ग हैं। Let R be a relation on Z which is defined by as x related to y if and only if 2x plus 3y is divisible by 5 is an equivalence relation।
Equivalence relation. So Z means, always remember, in a mathematics Z मतलब होता है set of integers. Always remember. Z means what? Set of integers. So the integers में क्या क्या होते हैं? That is we can write that is minus infinity, 0 to plus infinity. So always remember these things. इंटीजर्स है मतलब नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, क्योंकि z से आपको रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब z मतलब होता है इंटीजर्स. नाउ रिलेशन डिफाइन करना है हमको यहाँ पे. सो फॉर अ रिलेशन ऑलवेज रिमेंबर, और वी कैन से दैट, मैं यहाँ पे इसको रिलेशंस के बेसिस पे डिफाइन करता हूँ. r इज इक्वल टू एक्स वाई belongs to z, that is integer, बट रिलेशन है तो z इंटू जेड आपको लिखना पड़ेगा रिलेशंस के लिए. दैट इज 2x प्लस 3y, 2x plus 3y is divisible by 5. तो ये हमारा रिलेशन हमको गिवन है, हमको इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है. इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे शो करना है? तो इक्विवेलेंस रिलेशंस में तीनों टर्म्स होने चाहिए, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड अ ट्रांजिटिव पेयर्स. अगर ये तीनों पेयर्स हो जाते हैं, ये तीनों रिलेशंस डिफाइन हो जाते हैं, तो हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. तो देखो अच्छी तरह से ध्यान दो, वहाँ पे आपको एलिमेंट्स डायरेक्टली दिए जाते थे, लाइक ए बी सी डी, ऐसा ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू ए. यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना है आपको. सो फर्स्ट आई एम जस्ट टेकिंग दैट इज अ रिफ्लेक्सिव. सो फर्स्ट वन इज अ रिफ्लेक्सिव. जैसे रिफ्लेक्सिव आ जाता है, मतलब आपका माइंड सेट पे एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए, और वी कैन जस्ट राइट जस्ट लाइक हियर वी रिटर्न एक्स रिलेटेड टू एक्स. अब हमको गिवन क्या है? देखो गिवन हमको क्लियरली है कि 2x plus 3y इज डिविजिबल बाय 5. ये हमारा टर्म गिवन टर्म दिया गया है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंप्लीटली. देखो अच्छी तरह समझना, दैट इज x बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर. सो वी कैन राइट 2x plus 3y, ये हमको जो गिवन है 2x plus 3y इज गिवन. लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है? x रिलेटेड टू x, मतलब जो y है उसको भी हमको x में कन्वर्ट करना है इधर. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस पार्ट इज कंप्लीटली गिवन इन अ क्वेश्चन. 2x plus 3y इज गिवन. कब? जब xy बिलोंग्स टू z इंटू जेड है, या xy जब आपका बिलोंग कर रहा है z को. लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट क्या है? x रिलेटेड टू x. कब? जब x बिलोंग्स करता है z को. तो जब x और y के फॉर्मेट में है तो 2x plus 3y है. जब सिर्फ x के फॉर्मेट में रहेगा, यहाँ पे सिर्फ x के, तो ये क्या होएगा हमारा? देखो, सो दैट वी कैन राइट दिस पार्ट एज अ 2x plus 3x which is equal to 5x, and 5x is divisible by 5. So R is reflexive. So R is reflexive. ये हमारा पहला पार्ट वेरीफाई होता है. सो देखो अच्छी तरह से समझो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस पे बेसिस पे ही आप डिफाइन कर सकते हो. एक्स वाई, जब एक्स वाई आपको दिया गया है तो आपने 2x plus 3y इज डिविजिबल बाय 5 लिखा है, मतलब जो आपको गिवन है. This is clearly mentioned in a question. Let R be a relation on Z which is defined by as x related to y.
जब x रिलेटेड टू y आप कहते हो तो 2x प्लस 3y इज डिविजिबल बाय 5, ये क्वेश्चन आपको बोलता है। तो x रिलेटेड टू y है तो 2x प्लस 3y लिखे हैं, तो x रिलेटेड टू x रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा 2x प्लस 3x हो जाएगा, ये पार्ट अपना वो 5x आपको मिला, तो 5x इज डिविजिबल बाय 5। अगर डिवाइड करोगे 5x को तो it is clearly divisible by 5. So the first part reflexy is verified. Now the second part is we have to define is a symmetric. Symmetric. So the symmetric is let x related to y. अब यहाँ पे आ गया x रिलेटेड टू y, जैसे ही x रिलेटेड टू y आता है आपका जो मेन कंडीशन है वो कंडीशन लिखोगे जो दिया है आपको x रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब आपको क्या दिया है 2x प्लस 3y is divisible by 5, is divisible by 5, this part is given। तो मैं क्या करता हूँ let 2x plus 3y is divisible by 5 को ऐसा लिखता हूँ, मतलब divide by 5 which is equal to k। I am just considering this part as a k। So hope things are just, I'm just representing this part 2x। So in a next step I'm just applying one thing, so hope you will understand। नहीं समझ में आता है तो पूछना जरूर। So I'm just writing this part here, 5x minus 3x plus 5y minus 2y upon 5 as it is, and which is equal to k as it is। This little bit adjustment we are did here। 2x है हमको चाहिए तो 5x माइनस 3x लिखें तो भी हमको 2x मिल जाएगा। सिमिलरली 5y माइनस 2y लिखेंगे तो भी हमको 3y ही मिलेगा। सो जस्ट वी रिटर्न हियर। नाउ सी हम लोग कुछ टर्म्स कॉमन निकाल सकते हैं न्यूमरेटर से, अगर देखोगे मतलब दोनों टर्म्स में से। इफ आई विल टेक 5 as a common factor between these two terms, 5 as a common factor between these two terms, or we just representing, this is my equation number 1। So while taking 5 as a common factor, so remaining is x plus y, ये दोनों part, and the remaining I'm just taking a minus sign common between these two terms, so minus while taking common, so remaining is 3x plus 2y, और 2x plus 3y भी लिख सकते हो आप, सॉरी 3x plus 2y और 2y plus 3x भी आप लिख सकते हो, लिखना है तो divided by 5 as it is equal to k as it is equal to k as it is। Now if you see in a question in a equation number 1, then 2x plus 3y by 5, 2x plus 3y by 5 is equal to k, हमने जिसको कंसिडर किया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा हूँ, खाली एक सिंपल वर्कआउट यहाँ पे हम लोग करेंगे। x प्लस 5, देखो इसको मैं अगर सेपरेट करके यहाँ पे लिखूं तो मेरा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली भी आप कर सकते हो 5 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 5 माइनस 3x प्लस 2y upon 5 is equal to k। So this part get cancel here, एक पार्ट मेरा कैंसिल हो जाएगा, दोनों 5 मैं यहाँ पे एक वर्कआउट करता हूँ, माइनस टर्म्स को एलिमिनेट करूंगा तो ये पार्ट को मैं इस साइड भेजता हूँ और ये पार्ट को इस साइड लाता हूँ। तो खाली अंडरस्टैंडिंग करना, x प्लस वाई माइनस के हो जाएगा और माइनस वाला पार्ट इस साइड चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y बाय 5।
तो ये टर्म हमको मिल गया। होप दिस पार्ट यू मस्ट बी क्लियर कि हमने ये वर्क कैसे किया है। सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग वन मोर थिंग अगेन हियर। कंसिडरिंग अगर करूं मैं, तो थोड़ा सा ध्यान आप देना कि सिमेट्रिक में हम लोग एक्चुअली प्रूफ क्या करते हैं। सिमेट्रिक में हमारा प्रूफ का कंसेप्ट यही होता है कि अगर x रिलेटेड टू y है तो हमको मिलना चाहिए y रिलेटेड टू x। यही हमारा प्रूफ होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट x प्लस वाई माइनस के इज इक्वल टू m। तो मेरे को ये पार्ट मिल जाएगा m। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो 2y प्लस 3x बाई 5 इज इक्वल टू m। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने के लिए इस पार्ट को नहीं लिए हैं कि हमको इसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, जब x रिलेटेड टू y है तो 2x प्लस 3y डिवाइड डिविजिबल बाय 5 है। ध्यान रखो अच्छी तरह से, जब x रिलेटेड टू y आपको गिवन है तो 2x प्लस 3y डिविजिबल बाय 5 है। तो सिमेट्रिक में अगर ये प्रूफ करना है तो x रिलेटेड टू y मीन्स 2x प्लस 3y। तो y रिलेटेड टू x मतलब क्या रहेगा, अगर x रिलेटेड टू y दिया है 2x प्लस 3y तो y रिलेटेड टू x क्या होएगा, 2y प्लस 3x हो जाएगा ये पार्ट। x रिलेटेड टू y है मीन्स 2x प्लस 3y। इफ y रिलेटेड टू x वी हैव टू राइट तो 2x 2y प्लस 3x, वही चीज हमने यहाँ पे दिया है 2y प्लस 3x, वो भी डिविजिबल बाय 5 है, वो भी डिविजिबल बाय 5 है। यहाँ पे x रिलेटेड टू y अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है, मतलब 2x प्लस 3y डिवाइड बाय 5 है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से। यहाँ पे जैसे ही हम y रिलेटेड टू x लिखेंगे तो 2y प्लस 3x है, वो भी डिविजिबल बाय 5 है, जिसको हमने इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये हमको पार्ट दिखा रहा है कि यहाँ पे y रिलेटेड टू x हमने डिफाइन किया है, y रिलेटेड टू x, y रिलेटेड टू x। इसका मतलब क्या हो रहा है, y रिलेटेड टू x मतलब 2y प्लस 3x इज ऑल्सो डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या हो गया, x रिलेटेड टू y डिविजिबल बाय 5 था, y रिलेटेड टू x डिविजिबल बाय 5 है। इसका मतलब तुमने क्लियरली बताया कि r जो है, r इज सिमेट्रिक, r इज अ सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। आपके ऊपर है, आप कोई भी एक्स वाई दो नंबर ले लो, दोनों में सब्सटीट्यूट करके देखोगे, यू विल गेट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 इटसेल्फ ओनली, 5 ही मिलेगा आपको, मतलब डिविजिबल बाय 5 ही मिलेगा आपको। तो ये जो हमने बीच में जो वर्कआउट किया है, ये सिर्फ हम लोग क्यों वर्कआउट किए हैं, कोई सॉल्यूशन लाने के लिए नहीं। ये जो वर्कआउट हमने किया है, इससे हमको एक ही चीज़ चाहिए कि हमारा जो मेन मोटिव था कि x रिलेटेड टू y है तो ये फॉर्मेट है, तो y रिलेटेड टू x जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो ये अदला बदल हो जाना चाहिए, मतलब ये 2y प्लस 3x हो जाना चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ पे जस्ट एडजस्टमेंट किया और उसको इक्वेट करके यहाँ पे इक्वेशन 2 हमने जनरेट किया है। तो 2y प्लस 3x उसके वो भी डिविजिबल बाय 5 है, एंड 2x प्लस 3y इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो दोनों डिविजिबल 5 हो गए। सिमेट्रिक में यही कानून है कि अगर x प्लस वाई डिविजिबल बाय 5 है तो y प्लस एक्स भी डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। अगर x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू एक्स भी होना चाहिए। तो अगर वहां पे डिविजिबल बाय 5 था तो यहाँ पे भी डिविजिबल बाय 5 टर्म्स मिलना चाहिए। So this is the solution for the symmetric, and the last one more term is remaining is we have to verify that is at transitive. So the third one we have to define here, R is transitive. I'm just writing here, R is transitive. तो ट्रांसिटिव का कॉन्सेप्ट सेम आपको पता होना चाहिए, x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z। तो सिंपली मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, जब x रिलेटेड टू y है तो आप लिखते हो 2x प्लस 3y डिविजिबल बाय 5 है, बराबर है।
ये आपको गिवन है, इसको मैंने जैसे रिप्रेजेंट कर दिया m से। और y रिलेटेड टू z लिखोगे आप तो इसका मतलब क्या होएगा, y रिलेटेड टू z मीन्स 2y प्लस 3z डिवाइडेड बाय 5 है। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया n से। तो यहाँ पे हमने कंसिडरेशंस करके दोनों को सब्स्टिट्यूट किए हैं। अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो 2x प्लस 3y, देखो हमको प्रूफ क्या करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट है आपको समझना। आपको गिवन है ये चीज दोनों दी, क्योंकि ट्रांजिटिव में आपको ये दो चीज दी जाती है, x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z। तो आपको फाइंड आउट करना रहता है x रिलेटेड टू z, ये आपको कैलकुलेट करना रहता है। तो r इज ट्रांजिटिव है, प्रूफ करना है, मतलब दो चीज आपके पास गिवन है, x रिलेटेड टू y। तो ये क्वेश्चन कंडीशनल है कि ये दोनों टर्म्स डिविजिबल बाय 5 है। y रिलेटेड टू z तो सिर्फ आपको वेरिएबल चेंज करना है, 2y प्लस 3z विच इज डिविजिबल बाय 5 विच इज इक्वल टू n। हमने रिप्रेजेंट किया है k m, किससे भी रिप्रेजेंट करो। सो वी हैव टू जस्ट एडिंग हियर दिस पार्ट। सो 2x प्लस 3y बाय 5 प्लस 2y प्लस 3z divided by 5 is equal to m plus n, is equal to m plus n. Now if you see, then some parts only adding this in these terms. So while adding this part, see 3y plus 2y, it will becomes 5y. So I'm just writing 2x plus 5y plus 3z divisible by 5 as it is, which is equal to m plus n, m plus n. So hope things are clear. इसको सेपरेट कर सकते हो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 2x प्लस 3z में लिख सकता हूँ यहाँ पे ऐसा, 2x प्लस 3z डिवाइड बाय 5, और ये हो जाएगा 5y बाय 5 which is equal to m plus n. We have to just simplify this part. 5 get cancelled here, so remaining is only y. So 2x plus 3z divided by 5 plus y is equal to m plus n. कुछ नहीं करना है, जस्ट ट्रांसफर करो और सब्स्टिट्यूट कर दो एक टर्म। तो 2x plus 3z divided by 5 is equal to, I'm just writing m plus n minus y. So we have to just substitute, let m plus n माइनस वाई इज इक्वल टू, मैं ले लूँ जैसे p ले लेता हूँ, चलो p हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3z अपॉन 5 विच इज इक्वल टू p। यही हमको चाहिए था हमारा। देखो हमको क्या है, इफ x रिलेटेड टू y मतलब 2x प्लस 3y डिविजिबल बाय 5, ये आपको गिवन है, ये भी चीज आपको गिवन है ट्रांजिटिव में। 2y प्लस 3z बाय 5 मीन्स डिविजिबल बाय 5 मतलब y रिलेटेड टू z है। तो हमको प्रूफ करना है x रिलेटेड टू z। हमको प्रूफ यही करना था कि हमको एक ऐसा टर्म यहाँ पे दिखाना है कि 2x प्लस 3z अपॉन 5, ये हमारा मेन मोटिव था कि ये फॉर्मेट हमको यहाँ पे कैसे भी करके लाना है। तो वो चीज़ हमने थोड़ा सा खाली एडिशन यहाँ पे अप्लाई किया दोनों टर्म्स में। ये सब्स्टिट्यूशन एक हमने यूज़ किया, m प्लस एन माइनस वाई इज इक्वल टू पी। तो हमको डायरेक्टली 2x प्लस 3z डिवाइडेड बाई 5। अगर हम x y z तीन कोई भी टर्म्स लेते हैं और तीनों में रखते हैं हम लोग अगर यहाँ पे, तो अगर हम लोग डिवाइड बाय 5 करेंगे देन वी विल गेट द टर्म्स विच इज डिविजिबल बाय 5। इसके लिए ये पेयर आपका या ये रिलेशन इज और r इज transitive. So we have to writing here that is r is a transitive. R is transitive. So the next we have to write is just only r is an equivalence relation. Equivalence relation. Please try to understand this concept, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही। सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एक 101% 6 मार्क्स का क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन पे यूनिवर्सिटी में
पूछा ही जाता है कि डिफाइन मतलब डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन, या क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा प्रूव दैट आर इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपल न्यूमेरिकल है, इजीली है, मैं आज ही वीडियो अपलोड कर दूंगा तो यू कैन जस्ट गो थ्रू विद दिस पार्ट। सो एक बार गो थ्रू करो, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग और इक्विवेलेंस रिलेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेफ्ट द लेक्चर्स बिकॉज वी हैव टू जस्ट टेक द अटेंडेंस। If anyone having any doubts, you can ask, or you can ask in a next lecture also. Yes, okay, okay, fine. So I'm just going to taking the attendance. So just wait 1 minute. Just stopping with presenting part. Okay, now I just taken the attendance. Now if you can left, no worries.